Every day, a team of chefs spend nearly 12 hours stirring milk and sugar to make over 700 kilograms of halwa for the famous sweet shop Chain Ji Halwa Wala. The sweet and soft milk-based dessert may be time-consuming to make, but people travel from all over to get it from Ji Halwa Wala. 450 किलोमीटर गाड़ी चला के मैं यहाँ पाली हलवा लेने के लिए आया हूँ बीकानेर से. While you can find countless types of halwa all across India and throughout the world, this shop has continuously been praised for its dedication to the craft and quality of ingredients. We visited the shop to see why it is so famous and how it prepares Gulab Halwa in such big batches. Chain Ji Halwa prepares 3 batches of halwa every day at its production workshop in Pali, Rajasthan, India. This process begins at 5 a.m. by fueling the furnace with the coal that piles high up on the walls. क्वांटिटी तो यही है, महीने में एक गाड़ी लगभग चलता है कोयला. ये लगभग आता है 17-18 टन आता है. The coal comes from mines in Jharkhand, and Chan Singh Rajpurohit, owner of Chain Ji Wala, believes it gives the dish a distinctive flavor. वैसे तो गैस पे भी बनाओ, किसी पे भी बना दो, कोयले की जगह जो टेस्ट आता है वो एक अलग ही आता है. Workers use mallets to break each brick of coal into smaller pieces. ये कोयला ही तोड़ते हैं दिन भर. कोयला तोड़ के वापस डब्बे भर के भट्टी के पास में लेके जाते हैं यहाँ से. गाड़ी भी आई है दूध की अभी. ये 22 कैन आई है. 880 लीटर दूध आया अभी. The dominant ingredient in halwa is milk, which the shop sources from nearby villages. To get the creamy taste and texture, only full-fat milk is used. The milk is then strained into kadays, which are deep pots similar to woks but with steeper sides. मेरी यहाँ पर 12 कढ़ाई इधर है, 10 कढ़ाई सामने गोदाम में है. दिन भर चलती रहती है. सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक चलता रहेगा. The whole cooking process takes about 4 hours and a full staff. 4 workers are dedicated solely to the coals, while 10 to 12 chefs work on the furnaces. They use ladles to continuously stir the milk for 2 to 3 hours until it becomes thick and creamy. While the stirring movement may seem simple enough, it actually takes a seasoned chef to get it right. देखो खुरपा तो इसमें क्या है कि एक जैसा चलाना पड़ता है. जो बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए. दोनों एक हाथ में जो खुरपा एक सरीका चलाना पड़ता है. खुरपे बरोबर नहीं चला हुआ तो नीचे जल जाता है, और जल जाने के बाद में वो काम नहीं आता है. इसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. 15-20 दिन की ट्रेनिंग करते फिर उसको खुरपा चलाने के लिए भट्टी पे खड़े करते हैं. Once the milk reaches the right consistency, sugar is added. हमारी जो शक्कर आती है वो महाराष्ट्र से आती है. महाराष्ट्र की शक्कर बढ़िया आती है एकदम. थोड़ी मीठी भी कम रहती है और अच्छी क्वालिटी की होती है. And the stirring doesn't stop there. The chefs will continue to stir the milk and sugar mixture for another 1 to 2 hours. और फिर उसको 100 टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर किया जाता है. नीचे वो डाला जाता है लोखंड का वो. Eventually, the contents of 10 kadays are combined into 4 to continue cooking slowly. When the thickened milk turns red and grainy and clarified butter starts to appear on the surface, the halwa is finished cooking. सिकाई का पूरी हो जाती है, फिर उसको नीचे बड़ी कढ़ाई में डालते हैं. Workers scoop 8 kilograms of halwa into these individual round serving plates and pick out any burnt bits with tongs. वापिस उस साइड से बना के इस साइड में लाके इसको ठंडा करते हैं थोड़ा. As the final touch, each dish of halwa is carefully decorated with work. बरक एक चांदी का पेपर होता है,
ये मिठाई पे सजाया जाता है। इससे क्या इसकी सुंदरता बढ़ती है। और फिर सिल्वर फॉल लगा के फिर वो जाता है अपने कोई कहनी रहे दुकान पे, और दुकान पे जाके वो सेल कर देते। When Chain Ji started the shop in 2007, he sold about 20 to 30 kilograms of halwa a day. But now, यहाँ से लगभग 700 किलो 700-800 किलो के लगभग जाता है दिल्ली दुकान। यहाँ से दिल्ली का 700 किलो लगभग है, तो महीने में 21-22 हज़ार किलो बनता है। the shop, which is very well known for its small, old table setup out front, sees about 500 to 600 customers every day. और फिर ग्राहक की भीड़ आनी चालू हो जाती है। फिर वो ये दिन भर ऐसा ही क्रम चलता रहता है। Once they're at the table, customers can choose how much they want to purchase. दुकान खोलने के बाद में पहले तो वो एक टेबल है, टेबल के ऊपर कांच का काउंटर लगाते हैं। काउंटर लगा के बाद में उसमें एक थाल रखते हैं। पैकिंग तो अंदर होती है, बाहर वो जो 100 ग्राम 50-200 ग्राम पाव के जो आते हैं उसको वहाँ बाहर से ही दिया जाता है, और अंदर की जो पैकिंग होती है। मैंने आधा किलो हलवा लिया है। ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो मैं 2-3 दिन में इनके यहाँ आता रहता हूँ और ये मैं ले जाता हूँ बच्चों के लिए। तो और कहीं का बच्चों को स्वादिष्ट लगता ही नहीं है, इनके यहाँ का ही स्वादिष्ट लगता है ये हलवा। अच्छा जी, मैं छोटा था जब से आ रहा हूँ, मेरे पापा के साथ आता था पहले। जी, हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया है, आप भी ट्राई करके देखें। बहुत अच्छा हलवा है यहाँ का पाली का। और ये यहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं लेने के लिए, बाहर से जो आते हैं टूरिज़्म वो भी लेके जाते हैं यहाँ से हलवा। बहुत मशहूर हलवा है। पाली में इस हलवे की लगभग 35-40 साल हो गए। पहले तो ट्रेनें थी नहीं, तो फिर बहुत कम ही बनता था। जब से फिर ये थोड़ी बहुत ट्रेनें चालू हुई तो फिर धीरे धीरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अब धीरे धीरे ऑल इंडिया और वर्ल्ड में ये हलवा प्रसिद्ध है। Halwa is believed to have originated in Arabia around the 13th century, but has since become an ubiquitous dessert throughout India. The recipe varies from region to region, but some of the common alternative ingredients include semolina, carrots, almonds and dates. But it seems like Chain Ji's version of the dessert has won the hearts of all sweet lovers. महीने में मतलब नॉर्मली ऐसे खाने के लिए तो 2-3 बार आ जाता हूँ। ये हलवा सिर्फ पसंद है कभी प्योर दूध और शुगर से बनता है। कोई भी इसमें मतलब कलर्स वगैरह या कुछ ऐड नहीं करते इसमें, इसीलिए। हम ऐसे तो समझ लो 20-25 किलोमीटर से यहाँ से आए हैं, लेकिन कभी कभी हम 100-150 किलोमीटर बालोतरा से भी यहाँ लेने के लिए आते हैं। पाली का बेस्ट हलवा है चैन जी हलवा। पाली में बात ये है कि जो पाली का जो प्रसिद्ध हलवा है चैन जी हलवा, ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ। इतना बनाते बिक जाता, ताज़ा ताज़ा बेचो, ताज़ा ताज़ा खाओ, और इसमें मज़ा एक अलग ही है।